Okay, so hello everybody, welcome back. So today's session will be regarding portfolio allotment. How to allot a portfolio, what is a portfolio, what is the purpose behind creating a portfolio, and how does it align with our educational work, how does it aligns with our internship, and how does it align with our client's need. Okay, so today we will understand everything in detail and a basic overview of how does a portfolio management works. Okay, you might have heard regarding PMS services, which is known as portfolio management services, equity research, and all. So, what is the working methodology behind it? We will understand. So, we can start with first basic definition. What is the job role of a portfolio manager? So as of now, you are working as an intern for various different roles, like someone is working in finance domain, someone is working in marketing, business development, business analytics, operations, and all. But collaboratively, portfolio management involves all kind of domain knowledge, right from finance, right from marketing, right from data analysis, operations, and all. So we will understand first what is portfolio manager, how this specific skill, how this specific job role will be beneficial for you in future job role in terms of professional way, in terms of entrepreneurial way, or in terms of personal way. So we'll go with the basic definition. What does a portfolio manager do? A portfolio manager is a financial professional. Understand this word. Financial professional means a person who is from the finance background. His education, his experience, his working is from a specific background because of which he or she has an authority, he or she has an trust which can, where they can give recommendation, advisory, analysis regarding to the financial investment. The same way, if we want to get any recommendation regarding health, we will consult a professional doctor because his education, his work has been aligned with the work, right? So पोर्टफोलियो मैनेजर का मतलब क्या है? एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल जो क्लाइंट के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखता है, यानी जो क्लाइंट अभी फॉर एग्जांपल मैं पोर्टफोलियो मैनेजर एंड माय क्लाइंट इज माय ब्रदर. So I am understanding what is my brother's requirement, what is my brother's need. I am understanding his financial background, his personal background, his needs, his risk taking capability, everything. Like for my brother is 27 years old, so I understand ki okay, he has just started his career, he's working into certain firm, he has this kind of salary range, then he has certain amount of asset, liabilities, what is his interest towards in which specific sector, उसका माइंडसेट, उसकी मेंटालिटी, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें मैं समझता हूँ. फिर उनके बिहाफ पे मैं उनको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पोर्टफोलियो मैनेजर इज जस्ट लाइक अ कोच. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे एक कोच का क्या, कोच के पास 15 से 20 प्लेयर रहते हैं, और जो प्लेयर्स इनिशियल लेवल पे रहते हैं वो बहुत रॉ लेवल पे रहते हैं. अभी कोच उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी नीड, उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको ट्रेन करता है. अगर कोई बॉलर है, बट बॉलर में भी चार टाइप के बॉलर है, स्विंग बॉलर है, स्पिन बॉलर है, फास्ट बॉलर है, एक्स वाई जेड टाइप का, तो उनकी नीड, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको ट्रेन करता है, सजेस्ट करता है, सो दैट दे कैन एक्सपर्टाइज इन दैट स्पेसिफिक फील्ड. तो अभी आपका सबसे पहले टास्क क्या है कि अभी आप जो आपके कस्टमर्स है, जो आपके क्लाइंट्स है, ये कौन है? ये आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के हैं, राइट? आप उनको अप्रोच करो जिनको आप जानते हो, जिसमें तीन सेगमेंट के लोग हैं. एक हो गए फ्रेंड्स, एक हो गए फैमिली, और एक हो गए कलीग्स. फ्रेंड्स वो रहते हैं जो आपके एज के हैं, जो 20 से लेके 30 के बीच में है, जो आपके स्कूल, कॉलेज, अभी प्रोफेशनल एमबीए कॉलेज या फिर जो भी प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज में आपके साथ पढ़ रहे हैं, और कई और फ्रेंड्स जो आपके रिलेटिव्स या फिर फैमिली फ्रेंड्स वगैरह एक्सवाइजेड जो है. तो ये लोगों को अप्रोच करने का तरीका, ये लोगों को समझाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि इनकी जो नीड्स है, उनका वर्किंग मेथोडोलॉजी. अभी जब आप आपके फ्रेंड का पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो आप आपके फ्रेंड के बारे में पूरा जानोगे कि जब मैं उसको डीमैट अकाउंट ओपनिंग उसका करवा रहा हूँ, यानी उसका एक स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, जबकि जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट उसके टाइम पे उसके कितने क्वेश्चन है, क्यों करवाओ, इसमें सेफ है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या है.
तो आपको सिर्फ उसका अकाउंट ओपन नहीं करवा, हमारा पर्पस किसी का सिर्फ अकाउंट ओपन नहीं करवाना है, हमारा पर्पस क्या है, उस स्पेसिफिक इंसान की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना है। इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करना है, पहला प्रोसेस कि उसको बेस्ट प्रोडक्ट दे रहे जो हम मार्केट में, जो कि है हमारा डीमैट अकाउंट। फिर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड उसको हम ट्रेन कर रहे हैं कि अभी आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपको ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इनिशियल लेवल पे बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाया जाता है, कहाँ पे ट्रेड करते हैं, कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए, कौन से पैरामीटर्स पे रिसर्च करना चाहिए। उस हिसाब से आप उसको डिटेलिंग करवा के उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो। इन शॉर्ट आप सिर्फ गाड़ी नहीं बेच रहे हो, गाड़ी बेचने के बाद में उसको गाड़ी चलाना भी सिखा रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको अभी टास्क मिला है, तो अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लाइंट का नाम है मुजम्मिल। ठीक है, अभी वो रिलेशन विद क्लाइंट क्या है मेरा, कि ये मेरे फैमिली रिलेशन में आता है, यानी ब्रदर है। अभी उसका अकाउंट स्टेटस क्या है, हाँ मैंने उसको अकाउंट ओपन करने बोला और वो अकाउंट ओपन हो गया। अभी जब मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं पहले वो जान रहा हूँ कि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उस वो अभी कौन सी कंपनी में वर्क कर रहा है, या वो उसका इनकम रेंज क्या है। एग्जैक्ट इनकम की जरूरत नहीं है, बट हमें समझ आता है, जैसे कि अभी मेरा भाई फॉर एग्जाम्पल ही इज वर्किंग विद एन फाइनेंशियल फर्म नेम्ड क्रिसिल, एंड आई अंडरस्टैंड कि उसका यू नो सैलरी रेंज इज बिटवीन 8 lakhs to 10 lakhs। तो मैं मुझे ये जानने आता है कि चलो उसका एक बेसिक सोर्स ऑफ इनकम अच्छा खासा है। जब मैं उसका अकाउंट ओपनिंग करवा रहा हूँ तब उसके मुझे कई सारे क्वेश्चन आएंगे कि क्यों अकाउंट ओपन करवाओ, सेफ है ये डॉक्यूमेंट क्यों, अगर ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, कितना ब्रोकरेज लगेगा, क्या सजेशन मिलेंगे, क्या रिकमेंडेशन मिलेंगे। तो उससे मुझे उसका एक नेचर समझेगा कि वो एक्सेप्टिंग नेचर वाला है या फिर डिफेंडिंग नेचर वाला है, ही इज रेडी टू इन्वेस्ट, या फिर बहुत रेजिस्टेंट है, उस हिसाब से मैं ये करवा रहा हूँ। जैसे कि जब मैंने मेरे भाई से बात किया, वो क्रिसिल में काम कर रहा है, सो इज वर्किंग विद अ फाइनेंशियल फर्म जो इक्विटी रिसर्च वगैरह, सो ही हैज अ फेयर आइडिया, सो ही वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक रिगार्डिंग दिस, यस आई नो अबाउट स्टॉक मार्केट, या बट आई एम नॉट इनटू इट, मुझे सिर्फ थोड़ा थोड़ा पता है, तो तू मुझे उस रिगार्ड में मेरी हेल्प करवा, यानी रिसर्च का काम, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें बता, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। तो पहले वो आपको एक बजट बताता है कि हाँ चलो, अगर मैंने अकाउंट ओपन किया तो मेरा एक 10,000, 5,000, 2,000 XYZ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, 100 रुपए का भी करता है, 500 रुपए का भी करता है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। बट हमको जब हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, 100 रुपए का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो एक भी स्टॉक नहीं आएगा। अगर SBI का भी स्टॉक लेना है तो वो 500 रुपए के ऊपर का है। तो इनिशियल लेवल पे हम एटलीस्ट बजट के हिसाब से पहले पोर्टफोलियो तो बनाते। फॉर एग्जाम्पल इज सेइंग कि चलो मैं 5,000 रुपए का, तो मेरे लिए पहले एक पोर्टफोलियो बना, डमी पोर्टफोलियो, सो दैट कि आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। उसकी इच्छा है वो 5,000 का इन्वेस्ट करे, या 500 का करे, या 50,000 का। हमारा काम क्या है, उसको बेसिक रिसर्च कैसे करना है, स्टॉक रिकमेंडेशन, ये सब करवाना है। ओके, तो पहले हमारा बजट क्लियर हो गया। फिर जैसे ही उससे मैं बात करूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि उसका अप्रोच ये है कि वो ज्यादा ग्रोथ वाले इसमें नहीं है, यानी वो ज्यादा ग्रीडी लेवल पे नहीं है कि हाँ मुझे इतना रिटर्न चाहिए। ही इज लाइक कि ठीक है, ठीक ठाक भी रिटर्न आता है, बट एक ग्रेजुअल और सेफ स्टॉक्स में जाना है, यानी ब्लू चिप टाइप के स्टॉक में। जबकि उसका, और फिर अभी उसका मार्केट के बारे में भी नॉलेज अच्छा है, क्योंकि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड और उसका वर्किंग बैकग्राउंड कुछ रिलेटेड है। फिर उसको ग्रोथ स्टॉक्स में भी इंटरेस्ट है, और फिर बाद में वर्किंग इन रियल एस्टेट रिसर्च फर्म जो कि क्रिसिल का है, उस रिगार्डिंग में। फिर बाद में जो भी आपका क्लाइंट का एनालिसिस, यानी यहाँ पे आप क्या समझ लो, किसी पोर्टफोलियो मैनेजर का क्या है, इम्प्लीमेंटिंग, एनालाइजिंग मार्केट एंड आइडेंटिफाइंग, यानी अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स नीड। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट की नीड समझी, उसकी कैसी है, क्या चाहिए। फिर बाद में वो रिकमेंड करता है। हम उसको पूछते हैं कि चलो अगर मैं तेरा 5,000 का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ तो तू मुझे बता कौन से सेक्टर में करना है। तो इज लाइक कि चलो यार बैंकिंग सेक्टर में करवा दे, और मेटल सेक्टर में करवा दे। तो अभी इनिशियल लेवल पे हमें भी पता नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर का कौन सा स्टॉक अच्छा है, मेटल सेक्टर का कौन सा स्टॉक है, और अभी हमारा बजट भी लिमिटेड है। तो जब हमें कोई चीज पता नहीं है तो व्हाट वी विल डू, वी विल आस्क अ पर्सन हु इज एक्सपर्टीज इन दिस। अभी यहाँ पे एक्सपर्टाइज कौन है, गूगल। whatsoever we have doubts, there will be too many recommendation on Google, so from that we can research। जैसे कि अभी उसने बताया है कि बैंकिंग का स्टॉक है, तो अभी मेरे पास मान लो 5,000 का पोर्टफोलियो, तो मैं सोच रहा हूँ कि बैंकिंग में मैं 3,000 का उसका बजट करवा दूं, और मेटल में 3,000 का, 2,000 का बजट रखवा दूं।
अभी बैंकिंग में से अभी मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टॉक सिलेक्ट नहीं करता हूँ, तो मुझे यहाँ से एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सा है। अभी मुझे सेक्टर तो पता है। अभी मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, आई नीड टू आस्क गूगल इन अ स्मार्ट मैनर which banking stocks has good growth under। अभी कैसा है, मुझे 3000 का बजट है, तो 3000 का बजट है तो मैं 100 रुपए के अंदर का स्टॉक्स देखूंगा, अंडर 100 रुपीज। ठीक है, अपने आप एक एंजल वन करके आ गया, फिर बाद में 5 पैसा आ गया, एल आई ब्लू स्क्रीनर, ये सारे आ गए, और टिकर टेप आ गया। तो मैं दो तीन ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल तो यहाँ पे मुझे बता रहे हैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाय अंडर 100 रुपीज। ये लोग कौन है जिन्होंने ये बताया, ये इन्होंने, इनकी टीम ने रिसर्च किया है आज के मार्केट के हिसाब से, और फिर बाद में वो सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे अशोका बिल्डिंग, एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग। बट ये सारे कुछ स्टील के हैं, कुछ फाइनेंस के हैं, और अभी आ रहा है फेडरल बैंक। तो अभी हमारा दो सेक्टर था, एक तो मेटल था और एक बैंकिंग था। तो अभी फेडरल बैंक तो बैंकिंग का है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फेडरल बैंक इज वन ऑफ दिस। तो मैं यहाँ पे फेडरल बैंक के ऊपर थोड़ा रिसर्च करता हूँ कि फेडरल बैंक अगर अच्छा स्टॉक है तो क्या मुझे रिटर्न दे रहा है। फेडरल फेडरल बैंक, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं बेस्ट स्टॉक्स अंडर 100 रुपीज बैंकिंग सेक्टर मनी कंट्रोल, इस पे तुमको और डिटेल में आ जाएगा। जैसे कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन की है, यहाँ पे अगर आप लोगों ने ओपन किया, हाँ देखो परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक इन, अपने आप आ गया। स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करके वो बताया होगा कि कौन से स्टॉक्स, कौन से कितने इस पे चाहिए। अभी सारे बैंकिंग के स्टॉक के आ गए। अभी यहाँ पे हमारा बजट क्या है, 100 रुपए के अंडर वाला चाहिए, तो ये 665 वाला तो हमारे फायदे का नहीं है। हमारे फायदे का कौन सा, धनलक्ष्मी बैंक 18 रुपीज, इक्विटास बैंक 58 रुपीज, फिर बाद में 59 रुपीज का आईडीबीआई, 59 रुपीज का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जे एंड के बैंक, इस हिसाब से तो कई सारे बैंक आ गए हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे अभी हमने पहले देखा कि फेडरल बैंक में हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमको रिकमेंडेशन आई है कि फेडरल बैंक है। जैसे कि यहाँ पे देखो बैंक पब्लिक, और यहाँ पे प्राइस का भी आ गया। प्राइस में कौन सा है, फेडरल बैंक। ओके, फेडरल बैंक का ये देखो 175 वगैरह वगैरह, ये सारे रेंज में आ गए। फेडरल बैंक का जब हम स्टॉक देख रहे हैं, तो हमको क्या समझ आ रहा है कि चलो 132 रुपीज के आसपास का स्टॉक, यानी 100 to 130 के बीच में। अभी ये स्टॉक के बारे में मैं इनिशियल लेवल पे दो टाइप के एनालिसिस होता है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। बट जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस वो होता है जो शॉर्ट टर्म पे रहता है, यानी जैसे कि मैंने आज स्टॉक खरीदा, मुझे कल बेचना है, एक हफ्ते के बाद बेचना है, एक महीने के बाद बेचना है, 3 महीने के बाद बेचना है, 6 महीने के बाद बेचना है। तो उसके लिए जो मैं जजिंग पैरामीटर रहता है उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस वो रहता है जो लॉन्ग टर्म पे रहता है, जो मैं स्टॉक लेके होल्ड करता हूँ 1 साल 2 साल 5 साल के हिसाब से। तो अभी फंडामेंटल एनालिसिस का डिटेलिंग हम मॉड्यूल 2 में सीखेंगे, बट अभी इनिशियल लेवल पे हम जैसे लेमैन इंसान को कैसे समझ आना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि चार्ट, चार्ट स्टडी करके, यानी एक स्पेसिफिक स्टॉक का एक पैटर्न स्टडी करके हम लोग जज कर सकते हैं। सेकंड, हम उनके चार्ट स्टडी हो रहा है, जैसे कि टेक्निक हिस्टोरिकल रिटर्न, यानी पिछले 1 साल में, 3 महीने में, 6 महीने में कितना दिया है, चार्ट का पैटर्न समझ के। फोरम, यानी कम्युनिटी सेंटीमेंट और ब्रोकर का सर्कल क्या कह रही है, स्टॉक खरीदना चाहिए और क्या खरीदना, और उसके हिसाब से हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये फेडरल बैंक में हम लोग काम करते हैं, जैसे कि अभी मैंने फेडरल बैंक का ये किया, अभी मैं इसका चार्ट स्टडी कर रहा हूँ। तो चार्ट स्टडी करने से मुझे पहले क्या होता है, यहाँ पे मैंने 1 मंथ का देखा, ठीक है। तो 1 मंथ में मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। आप ये देखो, एक माउंटेन टाइप दिख रहा है, सेकंड माउंटेन, थर्ड माउंटेन, फोर्थ माउंटेन, फिफ्थ माउंटेन, सिक्स माउंटेन, यानी एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर आप 6 मंथ्स में भी जाओगे तो इस हिसाब से दिखेगा, एक माउंटेन, दो माउंटेन, तीन माउंटेन, चार माउंटेन, इस हिसाब से, ठीक है। और 1 ईयर के इसमें भी जाओगे तो आपको समझेगा। तो अभी आप लोग एक चीज नोटिस करो, ये स्टॉक पिछले 1 साल से सिर्फ बढ़ ही रहा है, यानी इसमें काफी अच्छी ग्रोथ है। यानी यहाँ पे अगर मैं नीचे लेवल पे जाता हूँ
अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे ये स्पेसिफिक स्टॉक अगले 6 महीने के लिए लेना है, तो क्या है, पिछले एक वीक में ये 0.53% से बढ़ा है। ग्रीन यानी बढ़ना, रेड यानी घटना। एक मंथ में -3.5% से घट गया है। पिछले 3 महीने में 11.24% से बढ़ा है। और जनवरी 1 से लेकर अभी तक 59% से बढ़ा है। और पिछले एक साल में 47% से बढ़ा है। ठीक है, तो मुझे ये क्लियर हो रहा है कि ये स्टॉक का ग्रोथ काफी अच्छे लेवल पे हो रहा है। यही स्टॉक का मैं अगर चीज नोटिस करता हूँ, तो फिर मुझे इस ग्रोथ से एक एनालिसिस हो रहा है कि हाँ, ये लॉन्ग टर्म पे फायदेमंद है स्टॉक, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, हर किसी को अलग लग सकता है। ठीक है, फिर उस हिसाब से मैं एक एनालिसिस करता हूँ और यहाँ पे प्रिडिक्ट करता हूँ कि हाँ, ये ग्रोथ हो सकता है। तो जो मेरा पोर्टफोलियो है, उसमें मैं हिस्टोरिकल रिटर्न्स में ये समझ आ रहा है कि पिछले एक साल में अराउंड 40% रिटर्न दिया है। और चार्ट चार्ट पैटर्न से मुझे ये समझ आ रहा है कि अगले 2 महीने 6 महीनों में कम से कम 10% के आसपास का ये ग्रोथ दे सकता है। क्योंकि अगर पिछले एक साल में 60% ग्रोथ दे चुका है, तो अगले एक साल में ऑन एन एवरेज 10% के आसपास भी ग्रोथ दे सकता है। अभी ये होता है फोरम। फोरम क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी एक नई मूवी आई है, दृश्यम 2। ठीक है, अभी ये मूवी देखने के पहले हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू देखते हैं। दो टाइप के रिव्यू होते हैं। एक होता है ऑडियंस रिव्यू, यानी आपके मेरे जैसे 26,000 लोगों ने रेटिंग दी है, अच्छी मूवी है बुरी मूवी है, तो आप मेरे को समझ आ रहा है कि यार 5.9 अच्छा दिया है। फिर एक होता है IMDb, यहाँ पे भी हम दे रहे हैं। बट अभी इसके अलावा भी रिव्यू देने की एक टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर बाद में NDTV, कोई मोई, ये कौन रहते हैं, क्रिटिक्स रहते हैं। ये लोग दे रहे हैं। यहाँ पे भी क्रिटिक्स ने क्या दिया है, 3.5। तो इसके हिसाब से हम समझ आ रहे हैं कि क्रिटिक्स 3.5 दे रहे हैं और जनता ने 4.9 दिया। उस हिसाब से हम लोग एक एनालिसिस करते हैं कि हाँ, ये मूवी अच्छी है या नहीं। ठीक है, वैसे ही स्टॉक्स में भी फोरम ये होता है, जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स रहते हैं, ट्रेडर्स आपके मेरे जैसे, वो लोग रेकमेंड करते हैं कि ये स्टॉक खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बेचना चाहिए। और एक रिसर्च टीम जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, HDFC सिक्योरिटीज, इनकी रिसर्च टीम बताती है कि ये होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो फेडरल बैंक केस में हम लोग अगर देखते हैं, नीचे फोरम में जाते तो 100% कम्युनिटी क्या बोल रही है कि बाई करो। ठीक है, क्योंकि इसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। ICICI डायरेक्ट क्या बोल रहा है, बाई करो। MK ग्लोबल फाइनेंशियल क्या बोल रहा है, बाई करो। शेर खान बोल रहा है बाई करो। कुछ रहेंगे वो ये भी बताएंगे सेल करो। उस हिसाब से हम लोग एक जजमेंट लेते हैं और इस हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं कि फोरम क्या बोल रहा है, बाई। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, उस हिसाब से हम हर स्टॉक के लिए वो करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया फेडरल बैंक, तो मैं सोच रहा हूँ कि फेडरल बैंक में, जस्ट अ मिनट, वो अपना डॉक्यूमेंट शीट में बना रहा हूँ, यानी मैं एक वर्ड फाइल बना रहा हूँ। और यहाँ पे उसकी सारी चीजें, जैसे कि फेडरल बैंक के बारे में कितना रिटर्न दिया है, उसका चार्ट एनालिसिस वगैरह वगैरह, उसका रफ वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से हम लोग हमारा पोर्टफोलियो बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू आवर कस्टमर। जैसे कि मैंने मेरे ब्रदर के लिए एक फेडरल बैंक का बनाया, फिर बाद में एक SBI का बनवाया। मेटल, सेम फॉर मेटल। जैसे कि अभी मेटल में यहाँ पे इस स्टॉक ने क्या बताया है कि हाँ, सेल, SAIL, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। तो इस पे भी हम सर्च करते हैं कि गवर्नमेंट की कंपनी वाला जो स्टॉक है ये कितना रिटर्न दे सकता है। SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें भी वही सेम टेक्निक यूज करेंगे हम। जैसे कि पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे हाँ 84 रुपीज यानी हमारे बजट में है। फिर उसका हम चार्ट स्टडी करेंगे। चार्ट स्टडी करने के लिए पहले 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स और 1 ईयर के उसके चार्ट पैटर्न को स्टडी करेंगे कि उसका ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, या डाउनफॉल है। जैसे कि अभी 1 मंथ में हमको समझ आ रहा है कि ये डाउन से फिर से रिकवरी मोड पे है। 3 मंथ्स में ये समझ आ रहा है कि ग्रोथ है।
6 मंथ में भी ये समझ आ रहा है कि अच्छा खासा ग्रोथ है, और पिछले 1 साल में ये समझ आ रहा है कि डिप हुआ है, डिप होने के बाद में ग्रोथ है, यानी इसका एक्चुअल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी ये इस पॉइंट से, यानी जुलाई से लेके अभी ग्रोथ हो रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे ग्रोथ होने के चांसेस है। जैसे कि इधर पिछले 1 साल, 1 वीक का परफॉर्मेंस 0.47 है, 3 महीने का 3.65, और पिछले 1 साल का, अभी आप लोग देखोगे कि अरे सर इसमें तो लॉस नहीं दिखा रहा, बट ये भी समझो कि ये लॉस जब होता है तब राइट टाइम है टू बाय, क्योंकि ये इसके पैटर्न से समझ लो कि ये डिप में गया है, यानी अभी ये ग्रोथ में जाएगा। इसका एवरेज तो इधर चल रहा है ना, हम क्या सोच रहे हैं कि 85 का अगर वो 95 भी जाता है तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि ऑन एन एवरेज मोर देन 15% होता है। तो उस हिसाब से हम लोग फोरम, फिर बाद में फोरम कम्युनिटी क्या बोल रही है, 75% बोल रहे हैं कि बाई करो, 25% बोल रहे हैं सेल करो। फिर बाद में हम लोग ब्रोकर रिसर्च को, कुछ लोग कह रहे हैं होल्ड करो, कुछ कह रहे हैं कि सेल करो, और कुछ लोग कह रहे हैं बाय। तो उस हिसाब से हम हमारा जो भी है पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और यहाँ पे हमको एक ऑलमोस्ट एनालिसिस आ जाएगा। इस हिसाब से हमने जितने लोगों का अकाउंट ओपन किया है या जितने लोगों को अप्रोच करे, उनके लिए हमें पोर्टफोलियो बनाना है। दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो अलॉटमेंट। तो यहाँ पे आप क्या क्या सीख रहे हो, कस्टमर से बात करके उसकी मेंटालिटी समझ रहे हो, उसका बिहेवियर समझ रहे हो, उसका पैटर्न समझ रहे हो, और उनकी नीड के हिसाब से आप आपका मैनेजरियल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, एजुकेशनल स्किल्स लगा के आप उनका पोर्टफोलियो बना रहे हो, जो कि, और ये जो भी चीज आप कर रहे हो, ये आपके जॉब रोल के साथ, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ, और आपके फ्यूचर जॉब रोल के साथ अलाइंड है। विद दैट वी कंक्लूड। थैंक यू।